Hello my dear Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा और आज के सेशन में we are going to discuss top 10 most important case based questions from entire grade 10th chemistry. तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सेशन को पक्का से लाइक कर देना और मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है. ओके बच्चा पार्टी, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अ बिट ऑफ मोटिवेशन एज ऑलवेज. So we have, if you want the rainbow, you have to put up with the rain. Absolutely. So if you want something big, if you dream of something big, you have to actually put in the efforts accordingly. Right, Bacha Party? I hope all of you agree with that. Apart from that, you can follow your Nikki ma'am on Instagram and Telegram as well, जिसका handle मैंने mention यहाँ पे already कर दिया है. So बच्चा पार्टी, as we proceed ahead and solve all the questions, आप भी सारे questions के answer definitely मेरे को comment section में जरूर देना और आप मुझे बताना कितने questions आपसे totally बने. Okay, start करते हैं first question से. So this is your question number 1. Two carbon compounds X and Y have the molecular formula C3H6 and C4H10 respectively. Which one of the two is most likely to show addition reaction? Justify your answer and also give chemical equation to explain the formation of addition in this case. तो आपको दो कार्बन कंपाउंड्स दिए गए हैं, दो हाइड्रोकार्बन्स दिए गए हैं. एक तो आपका है C3H6, राइट, दूसरा है C4H10. तो आपको बताना है, ये आपका X है, दिस इज योर Y. तो आपको बताना है इन दोनों कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देगा. नाउ बच्चा पार्टी, एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें अनसैचुरेटेड हमारा कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होता है in the presence of nickel, palladium, platinum, right? Now if we compare and have a look at both of these, which is C3H6 and C4H10, this is actually your unsaturated compound, right? ये हमारा क्या है? CH2 double bond CH CH3, right? This is your propene, है ना? ये एक एल्कीन है. अगर मैं इसका हाइड्रोजनेशन कराऊं in the presence of निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि प्रोपीन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोपेन, which is CH3, CH2, CH3, that is C3H8. ठीक है, this is your propane, है ना? And where you have a look at C4H10, ये आपका ब्यूटेन है, एल्केन फैमिली का मेंबर है, ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो इस केस में there will be no addition reaction. ठीक है, आई होप आप सबका भी आंसर यही आया है बच्चा पार्टी. ठीक है, तो ये दोनों में C3H6 will actually show addition reaction. Okay, I hope आपका भी आंसर सेम आया. So we have propene which is CH2 double bond CH CH3. तो प्रोपीन से क्या कन्वर्ट हो जाएगा? It will get converted into propane which is CH3 CH2 CH3. ठीक है, चलो next question. A white chemical compound becomes hard on mixing proper quantity of water, which is also used to maintain joints in fixed position. एक कोई chemical compound है जो कि hard हो जाता है when you actually mix water in it. ठीक है, और उसके बारे में ये चीज बोला गया है कि वो joints को fix करने में भी यूज होता है. Name the chemical compound and write its chemical formula. तो मुझे पक्का से कमेंट में जरूर बताना ये कौन सा कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला क्या है, और आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू दिस कंपाउंड इन प्रॉपर क्वांटिटी. तो ये जो हमारा व्हाइट केमिकल कंपाउंड है बच्चा पार्टी, दैट इज नथिंग बट हमारा POP व्हिच इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट. इसमें अगर आप एडुकेट अमाउंट में वाटर ऐड करोगे तो ये जो हार्ड सॉलिड सब्सटेंस बनाता है व्हिच इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, this is your gypsum. So this is actually the chemical formula and the chemical substance which is formed over here is gypsum. I think वो screen में वो पूरा cover हो गया. It is CaSO4.2H2. That is your gypsum. ठीक है, I hope आपका भी यही आंसर आया है और जिनसे भी गलती हुई है वो यहाँ पे करेक्शन कर लेना. ठीक है, तो ये POP है आपका CaSO4.2H2 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. इसमें अगर आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो ये क्या फॉर्म करता है? CaSO4.2H2O जो कि है हमारा जिप्सम. ठीक है, ओके. सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा पार्टी. आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही है और अगर आपसे गलती हो रही है मेक श्योर करना कि वो पक्का से आप नोट डाउन करके उससे सीख लो. ठीक है, तो आपके पास दो सोल्यूशंस है A और B. We have two solutions A and B.
The pH of solution A is 6. So pH of A it is given to you which is 6 and the pH of solution B is given to you which is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which one of this is acidic and which among this is basic? Now बच्चा पार्टी आपको दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं A और B, एक का pH 6 है दूसरे का pH है 8. तो pH और H+ में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, राइट? मतलब कि अगर pH ज्यादा है तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है ना? और अगर pH कम है मतलब H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है. मतलब यहाँ पे अगर pH A का कम है मतलब कि A will have more H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, है ना? It will have more H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि pH और H+ में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है? तो which will have more हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन? A will have more हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. आपको बताना है इसमें से एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है. तो ऑब्वियसली A is एसिडिक, ठीक है? और जो आपका B है दैट इज योर बेसिक इन नेचर, राइट? pH आपका जो रेंज की अगर मैं बात करूं, लेस देन 7 वाला जो रेंज होता है वो एसिडिक होता है. एग्जैक्टली 7 है न्यूट्रल, देन 8 to 14 इज द रेंज ऑफ योर बेसिक मीडियम, ठीक है? तो A जो है एसिडिक है सिंस इट इज हैविंग pH 6, B जो है बेसिक है उसका pH है 8. Okay, so A actually has more H+ ion concentration. A is acidic while B is basic. चलो, next question है आपका. On heating copper powder in air, the surface of copper powder becomes coated with black copper oxide. How can this black coating be converted into brown copper? Write chemical equation for the reaction that occurs during the color change. तो ये initially क्या बोल रहा है कि अगर आप copper powder को heat करोगे तो वो एक black color का copper oxide बना रहा है, ठीक है? यहाँ पे 2 आएगा. ये जो कॉपर ऑक्साइड आपका बन रहा है दिस इज एक्चुअली ब्लैक इन कलर, है ना? अब वो पूछ रहा है कि कॉपर ऑक्साइड से अगर मुझे वापस कॉपर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं. सो बच्चा पार्टी, क्या मैं इसका रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दूं? हाइड्रोजन बीइंग अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट वो कॉपर ऑक्साइड से किस में कन्वर्ट कर देगा? कॉपर में कन्वर्ट कर देगा, राइट? सो CuO प्लस H2, राइट? ये क्या फॉर्म करेगा? कॉपर प्लस वाटर. सो अगर इफ यू एक्चुअली react copper oxide which is CuO with hydrogen, then it will actually give you back the copper, along with that water is formed. तो इस तरीके से आपको copper oxide से copper मिल जाएगा, ठीक है? वही चीज लिखी है कि इनिशियली जब आप कॉपर को हीट कर रहे हो तो वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है विच इज ब्लैक इन कलर. अगर मुझे कॉपर ऑक्साइड से वापस कॉपर चाहिए सो यू कैन एक्चुअली हीट इट विद हाइड्रोजन गैस, यू विल गेट द कॉपर हियर, अलॉन्ग विद दैट वाटर इज फॉर्म्ड, ठीक है? चलो नेक्स्ट. It has been found that marble of Taj is getting corroded due to development of industrial areas around it. Explain this fact giving a chemical equation. तो ये जनरली एक्चुअली नोटिस किया गया है कि ताजमहल का जो मार्बल है वो खराब हो रहा है बिकॉज आसपास उसके बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल एरिया है. तो आपको एक्सप्लेन करना है एक प्रॉपर केमिकल इक्वेशन की मदद से. नाउ बच्चा पार्टी यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्बल ऑफ ताज इज एक्चुअली गेटिंग कोरोडेड, सो वी कैन राइट marble is composed of CaCO3, right? इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से होगा. नाउ बच्चा पार्टी ऑब्वियसली जो आपके इंडस्ट्रियल एरियाज है वो बहुत ऐसे हार्मफुल गैसेस लिबरेट कर रहे होंगे जो कि एक्चुअली वाटर के साथ कंबाइन करके एसिड्स कन्वर्ट कर रहे होंगे. तो यहाँ पे अगर मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन होगा एसिड के साथ तो वो क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम सल्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है? दूसरा अगर मैं रिएक्शन कराऊं कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है? तो वो एक्चुअली फॉर्म कर सकता है सॉल्ट विच इज CaNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर प्लस NO2, ठीक है? तो ये चीज आपको आ गई समझ? Okay, so here it will be not NO2, this will be CO2. वो एक करेक्शन कर दो.
ठीक है, ये आपका होगा CO2, क्योंकि मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेगा। तो दैट्स वाई जो आपका मार्बल है दैट इज एक्चुअली गेटिंग कोरोडेड। ठीक है, नाउ कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा तो कैल्शियम सल्फेट फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। अगर अगेन मार्बल का रिएक्शन हो सकता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर रहा है, राइट, इजंट इट। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हो रहे हैं, तो ताज बेसिकली किससे बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, राइट, और पोल्यूशन हो रहा है ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में, तो जो मार्बल है दैट कैन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। चलो नेक्स्ट, when a metal X is added to salt solution of metal Y, the following chemical reaction takes place। तो कोई एक metal X है और यहाँ पे है salt solution of Y, तो वो फॉर्म कर रहा है salt solution of X plus metal Y। Mention the inference and draw regarding the reactivity of metal X and Y and also the type of reaction, state the reason of your conclusions। तो यहाँ पे कोई एक metal X है और उसका salt solution है दूसरे का which is Y। ठीक है, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ आयरन एंड कॉपर सल्फेट। ठीक है, नाउ इफ यू एक्चुअली लुक द रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, एक ऐसी सीरीज है जिसमें जो मेटल्स है हाईएस्ट रिएक्टिविटी से लोवेस्ट रिएक्टिविटी में अरेंज्ड है, राइट। अब इस पर्टिकुलर केस में जो मेटल X है आपका जो कि आयरन है, इफ यू हैव अ लुक एट द रिएक्टिविटी सीरीज वो ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। सो जो आयरन है वो कॉपर की जगह ले लेता है, कॉपर को भगा देता है। व्हाट डज इट फॉर्म, इट फॉर्म्स FeSO4 प्लस कॉपर। तो इनिशियली जो कॉपर सल्फेट है दैट इज एक्चुअली ब्लू इन कलर व्हिच चेंजेस टू पेल ग्रीन कलर बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना। अब ऑब्वियसली आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। यहाँ पे एक मैंडेटरी चीज ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो मेटल X है आपका या जो एलिमेंट X होगा दैट हैज टू बी मोर रिएक्टिव, है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ इसका मतलब कंपल्सरीली ये नहीं है कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होगा जब जो मेटल X है दैट हैज टू बी मोर रिएक्टिव, है ना, देन ओनली इट विल बी एबल टू डिस्प्लेस द अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो X एक्चुअली इज मोर रिएक्टिव, दैट्स व्हाई इट इज एबल टू डिस्प्लेस Y फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, और इसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सो दैट यू नीड टू मेंशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay, now Bachcha Party, before we proceed ahead to another set of questions, I have a very important announcement to make. So since your board exams are approaching, we are giving you free practice papers for all the subjects, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, be it मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, SST, है ना। तो वो आप पक्का से चेकआउट कर लेना। वंस यू क्लिक ऑन द लिंक आपको साइन अप करना पड़ेगा एंड द practice papers will be accessible to you. Apart from that, Bachcha Party, in the link which is given in the description box, आपको chapter wise notes का भी link मिल जाएगा, hand written notes जो आपके sessions होते हैं रोज, उसके hand written notes given by your master teachers, that also is being uploaded on a daily basis, वो भी आप पक्का से check out कर लेना। ठीक है, so once you actually go in the description box and click on the link, handwritten notes में कुछ ऐसे आपको links मिलेंगे, इस पे आप जब click करोगे it will actually ask you to sign up. If you have not signed up already, make sure you definitely sign up, and the session PDFs, handwritten notes and practice papers will be accessible to each one of you. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा helpful होगा। So we have all the sample papers, revise India या daily जो आपके sessions हो रहे हैं हर subjects के लिए, that has been already uploaded, वो पक्का से link पे click करके आप checkout कर लेना। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ऑब्जर्व द टू टेस्ट ट्यूब्स A and B as shown in the diagram and answer the following questions। तो यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब्स आपको दिए गए हैं। टेस्ट ट्यूब A में आपका जो है कॉर्क थ्रेड, ये टेस्ट ट्यूब है। आयरन नेल इज एक्चुअली डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो इसमें आयरन और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के बीच में रिएक्शन होगा। ये आपका जो टेस्ट ट्यूब B है, इसमें कॉपर वायर इज देयर और इसका रिएक्शन इसमें कराया जा रहा है आयरन सल्फेट सोल्यूशन से, राइट। तो आपको बताना है किस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होगा, केमिकल इक्वेशन लिखना है और टाइप ऑफ रिएक्शन भी लिखना है। नाउ बच्चा पार्टी,
फर्स्ट वाले केस में आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन हो रहा है, सेकेंड वाले में कॉपर और आयरन सल्फेट के बीच में रिएक्शन हो रहा है. Now, if you have a look at the reactivity series, अगर आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन हो रहा है, इनिशियली अभी इसके पहले भी हमने सेम टाइप का क्वेश्चन किया है, ये ब्लू कलर से किस में चेंज हो जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर विच इज ब्राउनिश रेड डिपॉजिट, तो ये पेल ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, राइट. अब ऑब्वियसली जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को एक्चुअली डिस्प्लेस कर पाएगा, बट इस केस में जो रिएक्शन है दैट विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन कॉपर और आयरन सल्फेट के बीच में हो रहा है, राइट. तो ये आपका कैसा रिएक्शन है, दिस इज योर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है. सो ऑब्वियसली द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन टेस्ट ट्यूब ए, राइट. सो जो आपका टेस्ट ट्यूब ए है उसमें जो है रिएक्शन होगा पॉसिबल, ठीक है. सो इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब रिएक्शन विल टेक प्लेस, ये आपको एंटायर केमिकल इक्वेशन लिखना है, दिस इज योर एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a strip of aluminium with scratched clean surface is dipped into an aqueous solution of copper sulfate for a little time, the surface of the strip becomes brownish. What is the reason for this? Write the balanced chemical equation. तो हमने एक एल्यूमिनियम का क्लीन स्ट्रिप लिया, उसे एक्चुअली डिप किया कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में, तो आपको बताना है कि इस केस में क्या होगा और उसका प्रॉपर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, राइट. तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम का किसके साथ, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट व्हिच इज CuSO4, राइट. जब आपने एल्यूमिनियम का जो क्लीन सरफेस है उसे डिप किया कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में, देन व्हाट यू हैव नोटिस्ड कि जो सरफेस है स्ट्रिप का दैट हैज बिकम ब्राउनिश हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन डेफिनेटली हो रहा है. तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो यू विल फाइंड आउट जो एल्यूमिनियम है दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. अब मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, सो ऑब्वियसली इट विल थ्रो कॉपर आउट ऑफ द सोल्यूशन. तो ये क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस कॉपर. तो ये आपका कैसे टाइप का रिएक्शन है, दिस इज योर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है. ओके बच्चों, पार्टी एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना. एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, तो ये बेसिकली कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, एल्यूमिनियम सल्फेट और कॉपर बनाएगा, तो ये रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है. ओके, नेक्स्ट आपका है अ सब्सटेंस X which is an oxide of a metal is intensively used in cement industry. The element is present in our bones also. On treatment with water, it forms a solution which turns it turns red litmus blue. Identify X and also write the chemical reactions. तो एक सब्सटेंस है जो कि एक मेटेलिक ऑक्साइड है जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, राइट. और ये जो ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट है, इसका जो एलिमेंट है हमारे बोन्स, हमारी हड्डियों में भी पाया जाता है, वो क्या बोल रहा है कि इसका मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो वो एक सोल्यूशन फॉर्म कर रहा है जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है. तो आपको X आइडेंटिफाई करना है और उसका केमिकल रिएक्शन लिखना है. तो मुझे बताओगे बच्चा पार्टी, अ सब्सटेंस X which is an oxide of metal, that is nothing but your calcium oxide, right. So this is used in the processing of cement, है ना. और ये जो कैल्शियम जो है that is actually present in our bones. ओके, ना इसका रिएक्शन अगर मैं वाटर के साथ कराऊंगी, क्विकलाइम का रिएक्शन वाटर के साथ कराऊंगी, तो ये क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा. दिस इज योर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, मतलब कि ये बेसिक होगा इसका नेचर, एंड दैट्स व्हाई इट इज एक्चुअली टर्निंग रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है. तो ये आपका है केमिकल रिएक्शन. हमने पढ़ा है मेटेलिक ऑक्साइड्स या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स वो एक्चुअली बेसिक होते हैं, राइट. और बेसिक अगर उनका नेचर है मतलब कि वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेंगे, दैट्स व्हाट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन आल्सो, ठीक है. तो आपका जो मेटेलिक ऑक्साइड इसमें क्या है, CaO, मेटल कैल्शियम व्हिच इज प्रेजेंट इन अवर बोन्स. कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब आप वाटर के साथ कराओगे तो स्लेट लाइन वो फॉर्म कर रहा है. दिस इज योर स्लेट लाइन, ठीक है. Okay, so X is calcium. X is actually calcium oxide. So its oxide is CaO, which is used in cement industry. तो इसका रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, which turns red litmus blue.
नेक्स्ट, एन एलिमेंट फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स AO एंड AO2। तो एक कोई एलिमेंट है वो दो ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, एक तो है AO और AO2। और AO के बारे में आपको बोला गया है दिस इज न्यूट्रल, ठीक है। इसके बारे में बोला गया है दिस इज एसिडिक। तो आपको बताना है ए मेटल है या नॉन मेटल। तो बच्चा पार्टी सोच के मेरे को आंसर में कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, इज ए अ मेटल और नॉन मेटल। नो, कौन सा ऐसा मेटल है जो दो ऑक्साइड्स बना रहा है AO और AO2। इसका नेचर आपको न्यूट्रल दिया गया है, इसका नेचर आपको एसिडिक दिया है। सो दैट इज नथिंग बट कार्बन विच इज अ नॉन मेटल, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रल ऑक्साइड बना रहा है दैट इज CO, है ना। एसिडिक ऑक्साइड जो बना रहा है दैट इज CO2। सो वुड यू कॉल दिस एलिमेंट ए अ मेटल और नॉन मेटल? डेफिनेटली इट्स अ नॉन मेटल। जो वो CO बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, इट्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करूं तो वो क्या होगा? इट्स अ नॉन मेटलिक ऑक्साइड, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है आपका? कार्बन, एंड इट्स अ नॉन मेटल। CO इज न्यूट्रल एंड CO2 इज एसिडिक इन नेचर। ओके बच्चा पार्टी, सो वी आर डन विद टुडेज सेशन। आई होप आपसे सारे क्वेश्चंस बन गए, और कितने क्वेश्चंस बने इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। इससे बिफोर वी एंड द सेशन एक प्यारा सा होमवर्क ले जाओ, इस होमवर्क का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। आई होप यू फाउंड टुडेज सेशन वेरी यूजफुल एंड प्रोडक्टिव। पक्का से चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ यू हैव नॉट, एंड मेक श्योर करना यू डेफिनेटली शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि आप उनकी हेल्प कर पाओ। ओके बच्चा पार्टी, डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट एंड बताना मुझे एग्जाम्स की तैयारी कैसे चल रही है। सी यू वेरी वेरी सून माय प्यारे प्यारे प्रोटॉन्स आर्मी। हैप्पी लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।